خداوند بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ آج جو پیغام میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ دور حاضر کا بہت اہم میسج ہے، اور انسانی ایجادات اور انسانی جو تحقیق ہے وہ ہر گزرنے والے دن کے ساتھ تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی ہے، اور بہت سی انوینشنز لاسٹ دہائیوں میں ہوئی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب تک کی سب سے عجیب و غریب انوینشن جو انسان نے کی ہے وہ اسمارٹ فونز ہیں۔ سب سے حیران کن، سب سے خطرناک بھی، سب سے فائدہ مند بھی۔ اور جو پیغام میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں اس کا عنوان ہے اسمارٹ فون، انٹرنیٹ اور مسیحی ایماندار۔ اسمارٹ فون، انٹرنیٹ اور مسیحی ایماندار۔ آپ کی جیب میں یا آپ کے پرس میں یہ جو اسمارٹ فون ہے یہ بڑی ایک عجیب و غریب چیز ہے تو یہ اسمارٹ، لیکن یہ اسمارٹ ہے نہیں، ہے بڑا موٹا تازہ، کیونکہ اب آپ کو کیلکولیٹر کی ضرورت نہیں ہے، وہ اسی میں ہے۔ ہمارے زمانے میں جب چھوٹے ہوتے تھے لائٹ جاتی تھی تو لوگوں کی جیبوں میں ماچس ہوتی تھی، فوراً سے ماچس جلاتے تھے، روشنی کرتے تھے۔ بوڑھے انکل جو ہوتے تھے سگریٹ وغیرہ پیتے تھے، ان کے پاس ماچسیں ہوتی تھیں، لوگوں نے جیبوں کے اندر چھوٹی ٹارچیں رکھی ہوتی تھی، جب لائٹ چلی جاتی تو وہ جلاتے تھے تو ان کا بڑا ٹیکا بن جاتا تھا، ایس انکل کو ٹارچ بھی ہے گی۔ لیکن اب ہر بندے کے پاس ٹارچ، کیلکولیٹر اس میں ہے، ٹارچ اس میں ہے، کیلنڈر اس میں ہے، گھڑی اس میں ہے، اور تصویروں کو سیو کرنے، ویڈیوز کو سیو کرنے کی میموری اس میں ہے، میموری کارڈ اس کے اندر ہے، اور اس کے اندر اپلیکیشنز ہیں جو انٹرنیٹ کے تھرو اس میں آتی ہیں، اور یہ اپلیکیشنز انسانی زندگی کے تمام ہی ایریاز کو کور کیے ہوئے ایسے ہی ہے۔ اور ڈاکیا خط لے کر آتا تھا، لوگوں کو بڑی خوشی ہوتی تھی، کارڈ آتے تھے کرسمس کے اوپر، عید قیامت المسیح پر کارڈ آتے تھے، اور لوگ ان کو ریسیو کر کے بڑی خوشی محسوس کرتے تھے۔ لیکن اب اسی کے اندر کیک بھی ہے، سب کچھ ہے، تصویر کیک کی لگاؤ، نیچے ہیپی برتھ ڈے لکھو، چل میرا بھائی۔ اس نے انسانی زندگیوں کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے، ایسا ہی ہے، انسانی زندگیوں کی اس نے شکل ہی تبدیل کر کے رکھی۔ 1965 میں ایک شخص تھا اے جانسن، اس نے جو ٹچ ٹیکنالوجی تھی متعارف کروائی تھی 1965 میں، اور وہ ایک ایسی ڈیوائس تھی جو ایک ہی بار جس کو آپ ٹچ کرتے تھے، وہ اتنی جدید نہیں تھی۔ اس کے بعد اس پہ بہت سے لوگوں نے کام کیا، جس میں فرینک بیک اور بینٹ سٹیمپی، سیمول جی ہرسٹ اور بل بکسٹن اور اینڈریو سیئر، جنہوں نے اس کو بہتر بنانے میں اپنی کارکردگی دکھائی، اور انہوں نے بڑی محنت کی کہ اس ٹیکنالوجی کو زیادہ بہتر بنایا جائے، زیادہ ایڈوانس بنایا جائے، اور 1992 میں پہلا اسمارٹ فون دنیا کے اندر لایا گیا، لیکن وہ اتنا زیادہ جدید نہیں تھا، اتنا بہتر نہیں تھا، مزید کام ہوتا گیا۔ لیکن 2007 میں ایپل نے آئی فون انٹروڈیوس کروایا، اور جب آئی فون مارکیٹ کے اندر آیا تو اس نے لوگوں کی کائے پلٹ دی، لوگوں کی زندگیاں ہی بدل گئی، اور اس چھوٹی سی ڈیوائس نے پوری دنیا کو اپنا گرویدہ کر لیا، پوری دنیا کو اپنا ماتحت بنا لیا۔ میں یہ کہوں گا ماتحت ہے آج ہر ایک شخص اس اسمارٹ فون کا۔ ایک سروے کے مطابق ایک عام آدمی جو ہے وہ دن میں ہر 12 سے 15 منٹ کے بعد وہ اپنے موبائل کو پکڑتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کہیں کوئی میسج تو نہیں آیا، اور اگر اس کو آپ جمع کریں اس ساری پکڑ دھکڑ کو تو ایک بندہ، ایک عام شخص ایک دن میں 80 مرتبہ اپنا اسمارٹ فون پکڑتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ کسی کا میسج تو نہیں ہے، کسی نے کوئی تصویر تو نہیں بھیجی، کسی نے کوئی وش تو نہیں بھیجی، کسی نے کوئی پوسٹ تو نہیں کر دی ہیں، 80 مرتبہ۔ اور یہی سروے بتاتا ہے کہ ایک عام آدمی جو 60 سال تک زندہ رہتا ہے تقریباً 11 سال موبائل کے ساتھ گزارتا ہے۔ کتنے سال جی؟ 11 سال۔ 60 میں سے 11 سال اس نے اس موبائل کے ساتھ گزار دی۔ دنیا کے اندر جتنی بھی ایجادات ہوئی، یہاں تک کہ ایٹم بم بھی، یہ انسان کو تباہ کرنے کے لیے نہیں تھی۔ ایٹم بم بھی اس لیے بنایا گیا تھا کہ جس ملک کے پاس ایٹم بم ہوگا کوئی اس پر حملہ نہیں کرے گا، کیونکہ وہ ایک ایٹمی طاقت ہے۔ چائنا آج ایٹمی طاقت ہے، امریکہ ایٹمی طاقت ہے، پاکستان ایٹمی طاقت ہے، انڈیا ایٹمی طاقت ہے، رشیا ایٹمی طاقت ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ممالک ہیں جن کے پاس یہ اسلحہ موجود ہے، یہ میزائل موجود ہیں کہ اگر مار دو تو تباہی پھیل جائے۔ جیسے ہیروشیما پر پھینکا تھا امریکہ نے بم، وہ ایک بالکل ہی شروعاتی ایٹم بم تھا جس کے اوپر بہت زیادہ کام نہیں کیا گیا تھا۔ آج کا جو ایٹم بم ہے وہ بہت ہی زیادہ ایڈوانس ہے، وہ اس سے 1000 گنا زیادہ تباہی پھیلا سکتا ہے۔ لیکن جس سوچ کے تحت یہ بنایا گیا تھا اس کا مقصد تباہی نہیں، اس کا مقصد پروٹیکشن تھا کہ کوئی ہم پر حملہ نہ کرے۔ موبائل بھی جس سوچ کے تحت بنایا گیا تھا تاکہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکیں، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں،
और इस मोबाइल ने पूरी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना दिया। आप अमेरिका में हैं, आप कनाडा में हैं, आप जहां कहीं भी हैं, दुनिया के किसी भी हिस्से में हैं, आप व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेजते हैं, वो चंद सेकंड में, सेकंड भी बहुत ज्यादा हैं, वो बहुत जल्द आप तक पहुंच जाता है। सेकंड के भी पता नहीं कितने हिस्से में अगर नेट अच्छा है तो कड़क करके मैसेज आपके पास आ जाता है, और आप जो मैसेज भेजते हैं वो भी ठक करके उधर पहुंच जाता है। तो मोबाइल जो है इसने अरबों लोगों को अपने निर्गे में ले रखा है, और जब लोग मोबाइल घर भूल जाएं तो ऐसे लगता है कि पता नहीं मैं दिल्ली घर छड़ है, ऐसा ही है ना। उसे लगता है कि मेरी जिंदगी ही बेकार है, आज मेरा मोबाइल कहां रह गया। मोबाइल के बगैर आज का इंसान जो है वो अपने आप को अधूरा समझता है, और उसे लगता है कि मैं कुछ भी नहीं हूं इस मोबाइल के बगैर। लोगों ने टेलीविजन देखना छोड़ दिया, क्योंकि टेलीविजन का रफड़ यह था कि बाप ने खबरें देखनी है, भरा ने फुटबॉल का मैच देखना है, भैना ने ड्रामे देखने, और लड़ाई झगड़ा होता था, बच्चे कार्टून देखना चाहते हैं। मोबाइल ने यह काम किया कि सारे अपने अपने सोफिया पे बैठ जाओ, जो देखना देखो। और एक बहन ने मुझे बताया कि पादी साहब मैं तो टीवी पे नहीं देखती, मैं तो मोबाइल पे देख लेती हूँ, क्योंकि उसमें मशहूरियां भी नहीं आती, इंतजार भी नहीं करना पड़ता। सहूलत पे सहूलत, सहूलत पे सहूलत, सहूलत पे सहूलत। हर गुजरने वाले दिन के साथ इस मोबाइल में नई नई चीजें ऐड होती जा रही हैं, नई नई चीजें आती जा रही हैं, और हम इसके मोहताज होते चले जा रहे हैं। याद रखें, इसको इंसान ने इन्वेंट किया है, इसको इंसान ने इजाद किया है ताकि इंसान इससे फायदा उठा सके, ना कि इंसान इसके नीचे ही दब जाए। आज आप देखें, हर बंदा सुबह उठते साथ ही अपना मोबाइल पकड़ता है, अखा उदियां खोल नहीं रही होंदियां, पहले लॉक खोल रहे होंगे, नाश्ते की टेबल के ऊपर मोबाइल चल रहे हैं, फैमिली में कोई बातचीत नहीं हो रही, हर बंदा अपने अपने मैसेज चेक कर रहे हैं। ऐसे ही है ना। बच्चा नाश्ता नहीं करता, बच्चा स्कूल नहीं जाता जब तक आप उसको कार्टून ना दिखाएं। खाने की टेबल पर, बस स्टॉप पर आप देखें, वहां पे हर बंदा अपने चक्कर में, कई बार बस भी निकल जाती, उनको पता नहीं चलता। पिछले दिनों में मैंने एक कॉलम पढ़ा, उसके अंदर उसने एक बड़ी अजीब बात बताई। उसने कहा कि एक शख्स जो लूटने की गर्ज से बस के अंदर चढ़ा था, उसके पास एक मौजर था, और सब लोग मोबाइलों पे लगे हुए थे, उन्हें अंज करके मौजर कढ़िया, किसी ने देखा ही नहीं। थोड़ी देर बाद फिर उन्हें अंदर वाड़ लिया, 2-3 मिनट के बाद उन्हें फिर कढ़िया, शायद वो डरेगा, फिर किसी ने नहीं देखा, उन्हें फिर अंदर वाड़ लिया। तीसरी दफा उसने फिर निकाला, फिर किसी ने नहीं देखा, वो आप ही बसों उतर गए। तो उसने कहा इस हद तक लोग एडिक्ट हो चुके हैं। हवाई अड्डों पे आप देख लें, बिल जमा कराने के लिए लोग लाइन में लगे हुए, हर बंदे ने मोबाइल पकड़ा हुआ, कोई किसी को नहीं देख रहा, कोई किसी से नहीं पूछ रहा भाई जी तुसी कित्थों आए हो, तुसी कौन हो, ताड़ी जेब च बंब नहीं। कई लोग तो इसीलिए मर गए क्योंकि वो अपना मोबाइल ही देख रहे थे, उन्होंने इर्द गिर्द नजर नहीं दौड़ाई। गवर्नमेंट ने जगह जगह लिख के लगाया हुआ, अगर कोई मशकूक बंदा आपको नजर आए तो इस नंबर पे गवर्नमेंट को बताएं। गवर्नमेंट को बताएगा तो वो जो मोबाइल से अपनी आंखें हटाएगा। हर बंदा तो मोबाइल को चिपक चुका है, मोबाइल को उसने पकड़ रखा है, और मोबाइल के बगैर वो समझता है कि मेरा कुछ नहीं हो सकता। इसने हमें अपने कंट्रोल में ले लिया है। 6 बातें मैं आपके साथ इस मोबाइल के हवाले से करना चाहता हूं। मैं इसके मुखालिफ नहीं हूं, सुन लें। शायद आप कहें कि भाई साहब ने शुरू में ही ऐसी बातें कर दी हैं कि शायद कहेंगे कि मोबाइल सारे मैंने दे दो वर्ल्ड सर्वेशन जमा करा दो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, आपके मोबाइल आपके पास ही रहेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये मोबाइल आपके साथ कर क्या रहा है और आप इससे क्या फायदा ले सकते हैं। हम अभी तक इससे फायदा नहीं ले रहे, हम इससे नुकसान उठा रहे हैं। मैंने आपको बताया दुनिया के अंदर जितनी भी इजादात हुई हैं वो सब इंसान के बेनिफिट्स के लिए, इंसान के फायदे के लिए, इंसान को दुख पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि इंसान को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई गई चीजें। लेकिन इंसान ने उसको यूज इस तरह से किया कि उसने अपना बेड़ा गर्क कर लिया। तो 6 बातों में से पहली बात यह है, ये मोबाइल फोन जो आपकी जेब में है, आपके पर्स में है, आपके घर में है, ये आपका टाइम किल करेगा। ये क्या करेगा जी? ये आपका टाइम किल करेगा। ये टाइम किलर है। आज हर बंदे को आप ये कहते सुनेंगे, जिनमें मैं भी शामिल हूं, वक्त का पता ही नहीं चलता, बड़ी जल्दी वक्त गुजर जाता। पुराने लोगों का वक्त इतनी जल्दी नहीं गुजरता था। वो काम से आते थे, वो अपने भाई को भी मिल लाते थे, वो अपनी बहन को भी मिल लाते थे, फिर भी कहते सन यार देने नहीं टलंडे। काम से भी होके आ गए, बाजारों सौदा भी लाए, सब कुछ कर लिया, फिर भी दिन नहीं ढल रहा। आज कुछ भी नहीं किया, फिर भी दिन ढल गया, क्योंकि हमने हाथ में चीज ही ऐसी पकड़ी है, कड़कड़ 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 कड़, उधर जा इधर जा। टाइम कैसे जाया कर रहे हैं? एक अच्छा खासा पढ़ा लिखा बंदा अपनी तस्वीर के ऊपर खरगोश के कान लगा रहा, कोई बिल्ली दिया मुछा ला रहे। कभी आपने सोचा है कि इंसान को खुदा ने अपनी शबीह पर बनाया है? खरगोश के हवाले से नहीं लिखा, बिल्ली के हवाले से नहीं लिखा हुआ,
کہ खुदा ने इन जानवरों को अपनी शबीह पर बनाया, ना ना, आप खुदा की शबीह पर। जो फीचर्स खुदा ने आपको दिए हैं, जो औसाफ आपकी पर्सनैलिटी के अंदर है, वो जानवरों के अंदर नहीं है। आप बालातर हैं, आप अपने आप को कमतर क्यों बना रहे हैं और वक्त जाया कर। कहता नहीं यार, खरगोश के कान को उठे नहीं, मुच्छां ला भी ली नहीं, अच्छा खासा बंदा है। मैंने कहा यार इसको क्या हो गया। हर बंदा इसी काम में लगा हुआ। हमारी ड्यूटी बन गई कि हमने हर रोज स्टेटस चेंज करना है, व्हाट्सएप का स्टेटस चेंज करना है, फेसबुक के ऊपर हमने कोई पोस्ट लगानी है। हमारी जिम्मेदारियों में से है। क्या ये सही जिम्मेदारी हमारी? टाइम वेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा? हर रोज हमने फेसबुक पर या हमने व्हाट्सएप पर या ट्विटर पर अपनी नई तस्वीर चिपकानी है, फिर कहीं जाकर हमें सुकून आना है। और कई लोग ऐसे हैं जो दिन में 5-5 दफा चेंज करते हैं, आदी हो चुके हैं। ये आपको अपनी गिरफ्त में ले लेगा, और इसने गिरफ्त में ले लिया लोगों। किसी जमाने में किताब आई थी, रिच डैड पुअर डैड। रिच डैड, रॉबर्ट क्यूसाकी की एक किताब थी, और ये जबरदस्त किताब थी। इसके अंदर वो बताता है कि मेरा एक गरीब बाप था, एक अमीर बाप था। एक उसके दोस्त का बाप था, वो अमीर था। ये नहीं था कि उसके 2 बाप थे। उसका अपना बाप गरीब था, वो टीचर था, लेकिन उसका जो दूसरा बाप था वो उसके दोस्त का बाप था, जिसको वो अपना बाप समझता था। उसका एक इंटरव्यू मैंने सुना, उसमें वो कहता है अगर किसी ने अमीर होना है तो वो किताब पकड़ ले, अगर किसी ने कंगाल होना है तो वो मोबाइल पकड़ ले। तो हर बंदे ने मोबाइल ही फड़िया है। 12,000 तनख्वाह है, 35,000 का मोबाइल उसके पास है। मैं कई बार ही दसिया है, तुम पता है गल। 12,000 उसकी सैलरी है, लेकिन 35 से 40 साल वाला मोबाइल उसके पास है। किस्तों पे लिया। तेरे दिल के दुख और गम बढ़ते ही जाएंगे। साइकिल दे उत्ते मोबाइल लैके आ रहा, लहरांदा है। कहता जो मैं अपनी बीवी नूं दिखाना ना चा, उन्हें कहना हाँ तुसी कित्थों ले आंदा मोबाइल, लेकिन चा करन तो पहले ही चोर आ गए। उन्होंने कहा हाँ भाई इधर ले आ। फिर साइकिल भी नहीं चल रही, साइकिल भी इंज लग रहा जी मैं तोप ते बैठा है। रोटी लियावा, कहता रहन दे, पानी लियावा, कहता रह नहीं दे, कुछ ना लिया, बस मैनू कला छड़। फिर वो 1 हफ्ते तक डरता रहता बीवी से कि हुण मैं उन्हें दसा किवें कि 40,000 का खसारा खा बैठे। कहाँ पे हम जिंदगी गुजार रहे हैं, किधर हम जा रहे हैं? हम अपना वक्त जाया कर रहे हैं। हम अपना हर वक्त मोबाइल के साथ, हर वक्त में जहां कहीं आप जा रहे हैं, जहां कहीं जा रहे हैं, हमने अपना बाइबल मुकद्दस इफ्सियों के खत में उसके 5वें बाब की अगर आप 15वीं आयत से लेके 17 आयत तक पढ़ें तो वहां पर लिखा है, बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दानाओं की मानिंद चलो, और वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस सबब से नादान ना बनो बल्कि खुदावंद की मर्जी को समझो कि क्या है। बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो। मैंने और आपने अपनी जिंदगी को देखना है कि हम किस तरह से चल रहे हैं, हमारी तरजीहात क्या है, हम किन चीजों में अपना वक्त गंवा रहे हैं, हमने अपने लिए मुश्किल खड़ी कर रखी। ये सारा वक्त जो मैंने आपको बताया कि एक आम आदमी दिन में तकरीबन 60 से 80 मरतबा अपना मोबाइल पकड़ता है, और अगर वो एक दफा पकड़ लेता तो उसने एप्लीकेशन इतनी डाउनलोड की हुई हैं सबको, अगर वो 2-2 मिनट भी दे, 2-2 मिनट भी दे तो कम से कम 10 मिनट उसके बनने लग गए। कितना टाइम उसने घंटों के हिसाब से अपना टाइम मोबाइल में झोंक दिया। उसका हासिल उसको क्या हुआ? अगर वो इस सारे वक्त को यूटिलाइज करता खुदा का कलाम पढ़ने में और दुआ करने में तो क्या होता? बरकत पाता, हिकमत पाता, दनाई पाता, नजात की बातें सीखता, नजात की बाबत उसे तालीम मिलती, यीशु मसीह की सलीब के ताल्लुक से उसे तालीम मिलती, यीशु मसीह के जी उठने के ताल्लुक से उसे तालीम मिलती, रसूलों की जिंदगी को पढ़ता, नबियों की जिंदगी को पढ़ता, खुदा के मौजूदात को पढ़ता, यीशु मसीह किस तरह जमीन पर चलते फिरते थे, यीशु मसीह ने क्या तालीमात दी, उनसे मुतारिफ होता, उनको जानता, उनको अपनी जिंदगी में लेता। लेकिन उसने क्या किया? वो तस्वीरें लाइक करता रहा। आगे चल के जो पॉइंट्स हैं उसमें आपको बताऊंगा ये क्या मुश्किल है, हमारे मुआशरे के अंदर बिगाड़ कैसे पैदा कर रहा है ये मोबाइल। गुरे जिन्होंने जात किया वो नहीं इतना यूज कर रहे, मुसीबत सामने ही पई हुई है। वो इंटरनेट बना के, मोबाइल बना के वो इजी हैं, उनको पता है कि भाई हमने अपना काम करना है, और अगर वो मोबाइल को पकड़ते भी हैं तो वो उससे अपना काम करते हैं। हम कोई काम नहीं कर रहे। बेटे को पता है कि अबू गया है काम पे, तनख्वाह ले आएगा महीने बाद, मैं पैसे ले लांगा अम्मी को, ब्लेड खरीदांगा, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਂਟ ਪਾੜਾਂਗਾ, ਉੱਚੀ जी पैंट, पता नहीं केंद्री पैंट, बिल्कुल ऊपर है आजकल, बिल्कुल ऊपर आई हुई है वो, और अजीबो गरीब, नीचे मोजे भी नहीं, फ्लीट पाए ने और तस्मे भी कोई नहीं है। हाँ जी, चले जा रहे हैं, अजीब बाल ऐसे खड़े किए मुर्गे की तरह, जब कलगी होंगी मुर्गे की। मोबाइल उसने इतना बड़ा, अद्धा अंदर अद्धा जेब च अद्धा बाहर चला जा रहा, मोबाइल का वजन ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ज्यादा।
बस गौर से देखो किस तरह चलते। अपनी जिंदगी के ऊपर ध्यान तो कीजिए कि हम निजात याफ्ता लोग हैं। वो बेटे और बेटियां जो क्वायर के अंदर हैं, म्यूजिक बजा रहे हैं, क्वायर को लीड कर रहे हैं, मीटिंग्स लीड कर रहे हैं, उन बच्चों के आप जरा स्टेटस तो पकड़ें। वो सलमान खान के डायलॉग्स बोल रहे हैं, सलमान खान के डायलॉग, शाहरुख के डायलॉग, नवे पता नहीं केड़े केड़े हो रही हीरो, पता नहीं कौन कौन से हीरो हैं, वो एक्टर बने हुए हैं ऐसे जनाब, और बोल रहा है वो डायलॉग। मैं कहा है तो क्वायर च खलोता सी दोपहर इबादत दे। यहां इसका क्या रूप है? वक्त जाया ना कीजिए, अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए, आप किधर जा रहे हैं, गौर से देखिए आपकी जिंदगी की तरजीहात क्या हैं, हम किस तरह से अपनी जिंदगी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम खुदा के कलाम को वक्त नहीं देंगे तो जिस क्रूशल टाइम में मैं और आप दाखिल हो चुके हैं, हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते। बिली ग्राहम कहता है कि अगर क्राइसिस का आगाज अमेरिका से हुआ तो सबसे पहले अमेरिकन लोग मसीह को छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो दुनियादार लोग हैं, वो ये समझते हैं कि खुदा के बगैर उनकी एक बड़ी तादाद, मैं सारे अमेरिकियों को नहीं कह रहा, यूएसए के अंदर जितने लोग हैं मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन मेजॉरिटी ये समझती है कि अगर हम नेक हों, अच्छे हों, कुत्ता कहीं नाली के अंदर फंसा उसको निकाल के दूध पिला दें, पानी पिला दें, उसका दवाई दारू कर दें तो बहुत अच्छी बात है, खुदा इससे खुश हो जाएगा। खुदा इन बातों से खुश होता है तब जब हमने यीशु मसीह को अपना निजात देंदा कबूल किया हो। जब यीशु मसीह को ही कबूल नहीं किया तो कुत्ते को नहलाने से हमें निजात तो नहीं मिलनी, उसको दूध पिलाने से हमें निजात तो नहीं मिलनी, नेक काम करने से हमें निजात तो नहीं मिलनी। ये नेक काम भी उसी वक्त नेकी तस्वर किए जाएंगे जब यीशु का ब्लड आपके ऊपर हो। जब क्राइस्ट का ब्लड आप पर नहीं है तो ये सारा गंद बन जाएगा, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हैं, आप एक ऐसा वजूद रखते हैं जो गुनाह के अंदर लिथड़ा पड़ा। दाऊद कहता है मैनू विच गुनाह दे जम्मिया मेरी, मैं और आप गुनाह से भरे पड़े हैं। अगर आप एक गंदे गिलास के अंदर, मैं अक्सर बताता हूं, गंदे गिलास में साफ पानी डाल दें तो मेरे ख्याल से कोई भी नहीं पिएगा, क्योंकि आपको पता है कि पानी तो साफ था, ये तो नेस्ले की बोतल से आया है, लेकिन जो गिलास है गिलास बड़ा गंदा सी, नहीं पानी मैं नहीं पीना। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि गिलास बड़ा गंदा है। अगर मेरी और आपकी जिंदगी गुनाह के अंदर फंसी पड़ी है, आपके चंद नेकी के काम इस काबिल नहीं होंगे कि वो आपको खुदा के हुजूर रास्तबाज बना दे। खुदा ने खुद रेमेडी दी है, खुदा ने खुद इसके लिए इंतजाम किया, क्योंकि खुदा को पता है कि कोई भी नेकी इस लायक नहीं, कोई भी नेकी इस काबिल नहीं कि वो गुनाह को दूर कर सके। गुनाह को सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह का खून साफ कर सकता है, धो सकता है, दूर कर सकता है। इस नजासत को सिर्फ यीशु का खून और उसका ब्लड साफ करेगा। और अगर आप पर यीशु का खून है तो आप निजात याफ्ता हैं। बस गौर से देखो किस तरह चलते हो, अपनी जिंदगी के ऊपर निगाह कीजिए, आपकी तरजीहात क्या है। पहला कुरिन्थियों 10वां बाब उसकी 23वीं आयत में लिखा है, सब चीजें रवा तो हैं मगर सब चीजें मुफीद नहीं। भाई साहब इसमें क्या गलती, मैंने तस्वीर ही तो लगाई। भाई साहब इसमें क्या गलती है, मैंने जो बिरयानी बनाई थी उसकी तस्वीर खींच के लगाई है, अच्छे काम कर रही हूं मैं, बुरे तो नहीं कर रही। आपने अपना भी टाइम वेस्ट किया, तस्वीर खींचने में कुछ सेकंड तो लगाए होंगे, और जब तक वो गई नहीं होगी आप मोबाइल को छोड़ा नहीं होगा आपने, फिर उतनी देर तक आप देखते रहेंगे जब तक किसी ने लाइक ना किया हो। आपने खुद भी तस्वीर खींचने में वक्त लगाया, जिस बंदे को आपने सेंड की उसका भी आपने वक्त वेस्ट किया। बिरयानी उन्हें जिंदगी च कितनी बारी देखी, तुसी को लैदा बनाई, यहां तो घर छड़ के आओ ना बिरयानी, उन्होंने को मजा भी आया कि खींच दी, खाली तस्वीर पे कहता यार बड़ी स्वादी लग रही। अपना वक्त जाया ना करें। क्या आपको लगता है कि आप अपने इन स्मार्टफोन्स को लेकर अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो खुदा आज आपको इस बात के लिए उभार रहा है कि आप उसके कलाम की तरफ हैं। जितना टाइम आप स्पेयर कर रहे हैं मोबाइल को यूज करने में, उतना टाइम आप स्पेयर करें खुदा के कलाम को पढ़ने, खुदा के लोगों के साथ दुआ करने में टाइम स्पेंड, अपने अजीजों के लिए दुआ करने में टाइम स्पेंड करें। क्योंकि मैंने आपको बताया कि वक्त आइंदा आने वाले दिनों में कड़ा से कड़ा होता जाएगा, ये बेहतरी की तरफ नहीं जाएगा। हम इसकी तवक्को कर सकते हैं, हम इसके लिए दुआ भी कर सकते हैं, लेकिन कलाम इस चीज की सपोर्ट नहीं करता कि आइंदा आने वाले दिनों में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ओ गुडी गुडी हो जाएगा सब कुछ। वक्त गुजरने के साथ साथ क्राइसिस बढ़ेंगे, और उन क्राइसिस में कायम कौन रहेगा? जो खुदा के साथ जुड़ा हुआ है। जेड़ा मोबाइल ना जुड़े हो तो गया, जिसने खुदा के कलाम को थाम रखा है, जिसने ये जान लिया है और पहचान लिया कि खुदा के कलाम के बगैर मैं कुछ नहीं हूं, खुदा के पाक रूह के बगैर मैं कुछ नहीं हूं, मैंने उसमें चलना है, मैंने उसमें रहना है, मैंने उसमें जिंदगी गुजारनी है, यकीनन वही शख्स सरवाइव करेगा, वही शख्स कायम रह सकता है। लेकिन जो शख्स खुदा के साथ नहीं है वो दुनिया की मुश्किलात का सामना नहीं कर पाएगा, वो भाग जाएगा, वो अपना ईमान बेच देगा। ऐसे ही है। दूसरी बात, ये आपको दुनियावी मामलात में उलझा लेता है, ये आपको दुनियावी मामलात में उलझा लेता है। जिन चीजों से आपको कोई कंसर्न नहीं है,
آپ ان چیزوں کو سوچنا شروع کر دیتے ہیں, آپ ان چیزوں کو کرنا شروع کر دیتے ہیں. کبھی آپ شاپنگ مال میں جائیں اور کبھی آپ دکان پہ جائیں, اس کا ایک فرق ہے. اگر آپ دکان پہ جائیں گے تسی چینی لین گئے ہو, چینی لے کے آؤ گے. اگر تسی شاپنگ مال چ وڑ جاؤ گے, تسی کہو گے یار کیچپ ہی نہ لے لاں, وہ بھی سٹ لو گے باسکٹ. تسی کہو گے یار ڈبل روٹی بھی لے لینے, وہ کرتے کرتے پوری باسکٹ بھر جاتی. غیر ضروری چیزیں ہم اٹھا لیتے ہیں جب ہم شاپنگ مال میں جاتے ہیں, لیکن جب ہم دکانوں پہ جاتے ہیں ہم وہی چیز لے کے آتے ہیں جن کو ہم لینے جاتے ہیں. جب موبائل آپ کھولتے ہیں اس میں بہت سی غیر ضروری چیزیں ہیں جن کی آپ کو ضرورت بھی نہیں ہوتی, لیکن چونکہ آپ نے وہ ایپس ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہیں, اس پہ اپڈیٹ ہوتی رہتی ہیں, وہ چیزیں آتی رہتی ہیں, آپ اس کو کھولتے ہیں, اچھا وہ یہ کیا ہو گیا, یہ کیا ہو گیا, یہ کیا ہو گیا. یہ آپ کو دنیاوی معاملات میں الجھا لیتا ہے. اور رومیو اس کے 12ویں باب کی دوسری آیت کا پہلا حصہ ہے, اس میں لکھا ہے اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو, اس جہان کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ. ہم نے کیا کرنا ہے, اپنی صورت کو بدلتے جانا ہے. اور پہلا یوحنا اس کا دوسرا باب اس کی 15ویں آیت سے لے کے اس کی 17 آیت تک لکھا ہے, نہ دنیا سے محبت رکھو نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہیں. نہ دنیا سے محبت رکھو نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہے. جو کوئی دنیا سے محبت رکھتا ہے اس میں باپ کی محبت نہیں, کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے یعنی جسم کی خواہش اور آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی وہ باپ کی طرف سے نہیں بلکہ دنیا کی طرف سے ہے. دنیا اور اس کی خواہش دونوں مٹتی جاتی ہیں, لیکن جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے وہ ابد تک قائم رہے گا. آمین. دنیا کی خواہش, دنیا کا لسٹ, آنکھوں کا لسٹ آپ کو الجھائے گا, آپ کو الجھائے گا. اور دنیا کے اندر جتنا بھی سیٹ اپ ہے, خدا اس دنیا سے نفرت نہیں کرتا کیونکہ تو اس نے خود بنائی. یہاں پہ نظام کی بات ہو رہی ہے جو انسان نے ڈیولپ کیا ہے, جو خدا کے قوانین کے مخالف ہے. مرد مرد سے شادی کر لے, عورت عورت سے شادی کر لے. انسپائر کرتی ہیں یہ چیزیں جب بار بار آپ کے مائنڈ میں آتی ہیں. آپ دیکھیں جس دور تک پی ٹی وی تھا ہمیں ان چیزوں کا پتہ بھی نہیں تھا. آج جب اتنا زیادہ رش پڑ گیا چینلز کا, یوٹیوب چینلز کا رش ہی رش ہے, ہر قسم کا مٹیریل یوٹیوب پہ آپ کو ملے گا. ویب سائٹس ہیں, جو گند بلا آپ کے موبائل کے اندر پڑا ہوا ہے, آپ ایک ٹچ کے ساتھ اس کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے. دنیا کیا کر رہی ہے ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے. خدا میری زندگی میں کیا کام کرنا چاہتا ہے میرا کنسرن اس سے ہے. دنیا کے ہم شکل نہ بنو. دنیا تو امپائرز کے پیچھے بھاگ رہی, بڑے بڑے امپائر کھڑے کرنے ہیں, بڑا بڑا بزنس بنانا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, شیخی مارنی ہے. اگر ہم دنیا دار بن گئے تو دنیا دار لوگوں نے مرنا ہے, ان کی موت طے ہے. دنیا دار لوگ مریں گے کیونکہ خدا کا کلام بتاتا ہے کہ دنیا داری کو پسند کرنے والا شخص خدا کی مخالفت کرتا ہے, وہ خدا کے مخالف ہے. اس کی سوچ, اس کے خیالات, اس کی زندگی خدا کے کلام سے اپوزٹ ہے, اور وہ اس طرح سے اپنی زندگی گزار رہا ہے, اس سے خدا کو کوئی سروکار نہیں ہوگا. خدا یہ ویٹ کرتا رہے گا کہ یہ توبہ کر لے, یہ اس طرف آ جائے, لیکن چونکہ وہ دنیا کے اندر دھستا چلا جا رہا ہے, وہ دنیا کی خواہشات کے پیچھے بھاگ رہا ہے, اور دنیا آپ کو الجھا لے گی. اور دنیا اس موبائل کے اندر بھری پڑی ہے. موبائل کھولیں, ابھی فراق, ابھی فراق, ابھی میک اپ, ابھی کھول گیا, ابھی کھول گیا, اس کی اوپننگ بھی ہوگی مجھے پتہ نہیں چلا. عورتیں کہہ رہی وہاں پاس کپڑے ہی نہیں. شادی جب آ جائے ان کے پاس کوئی کپڑا نہیں ہوتا. کرسمس جب آ جائے ان کے پاس کوئی کپڑا نہیں ہوتا. عید قیامت المسیح آ جائے ان کے پاس کوئی کپڑا نہیں ہوتا. کسی کی سالگرہ آ جائے ان کے پاس کپڑا ہی کوئی نہیں. دنیا داری, ہر جگہ پہ نیا سوٹ ہونا چاہیے. اور اگر میں نے پچھلی شادی پہ سوٹ پہن لیا تھا, یہاں پہ وہی لوگ آئے ہوں گے, ان کے سامنے اگر میں نے وہی سوٹ پہن لیا, میں پتہ نہیں کنے بیاہ چ وہی سوٹ پا گیا بڑے بیاہ. جب میرا کام اس سے چل رہا ہے مجھے کیا ضرورت. دنیا آپ کو الجھائے گی, دنیا آپ کو اٹریکٹ کرے گی اپنی طرف, اور جب آپ دنیا کی طرف بڑھیں گے یہ آپ کو ایسا جفا مار لے گی کہ جان چھڑانا مشکل ہوگی. شاپنگ کی عادت ڈال لیں, مصیبت پڑ جائے گی آپ. آپ کہیں گے کھانا مجھے نہ دو, میں بازار جاؤں. کھانے کی عادت ڈال لیں اپنے آپ کو, پھر آپ کی زبان جو ہے وہ کھینچے گی ریسٹورنٹوں کی طرف. چل ریسٹورنٹ, چل ریسٹورنٹ, چل ریسٹورنٹ. کسی کو اچھا یار چلو پھر چلو, بیٹھو گڈی. ہاں یہ باہر نہیں جا سکتے تو گھر ہی پھر منگا لو, کچھ کر لو. دنیا کا لسٹ ہمارے اندر بھر گیا ہے. جو کچھ ہم میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں ہمارا دل کرتا ہے وہ سب کچھ ہی ہمارے گھر کے اندر آ گیا. لیکن سب چیزیں آپ کے لیے نہیں ہیں. یو آر چوزن پیپل, انڈرسٹینڈ اٹ. اس چیز کو سمجھیے. خدا نے آپ کو سلیکٹ کیا ہے, خدا نے آپ کو سیپریٹ کیا ہے تاکہ آپ دنیا سے الگ نظر آئیں. بھیڑ اور بکری میں فرق ہونا چاہیے. بھیڑ بھی وہی ہے, بکری بھی وہی, بکری کا بھی رنگ وہی, بھیڑ کا بھی وہی, بکری کی بھی چال وہی, بھیڑ کی بھی وہی. سمجھ نہیں آئے گا بھیڑ اور بکری کون سی. ایماندار بھی ویسا, دنیا دار بھی ویسا. چینج کوئی نہیں, کوئی سٹینڈرڈ نہیں, کوئی معیار نہیں. اس کے موبائل میں بھی گند بھرا ہوا ہے, ایماندار کے موبائل کے اندر بھی گند بھرا ہے. اس کا بھی سٹیٹس گانے والا, اس کا سٹیٹس بھی گانے والا, وہ بھی ڈائلگ بول رہا ہے, وہ بھی ڈائلگ بول رہا ہے. اور ہم انسپائر ہوتے ہیں دنیا سے.
जिस चीज को आप पसंद करते हैं, सलमान खान को, शाहरुख खान को, मैनू दे दो याद आ रहे और को नमिया का मैनू पता ही नहीं है। अगर वो बंदा सिगरेट पिएगा, गोला फेंकेगा बाहर, उसी को यार मैं भी लेनी सिगरेट, क्योंकि आप उससे इंस्पायर हैं, वो आपको इंस्पायर कर रहे हैं, वो आपको चीजें दिखा रहे हैं शबो रोज। एक ही ड्रामे का एड बार बार आ रहा है, कमिंग सून कमिंग सून कमिंग सून। उसी को यार कदों आना है यार, मेरी तो जान नहीं कदों आएगा, लगा कि नहीं लगा? कहता नहीं जी अजे कमिंग सून ही है। कहता मैं कितने जावा, मेरा ब्लड प्रेशर हाई होया पे आज। आ रहा है बार बार, आ रहा है बार बार, आप देख ही जा रहे हैं, आप एडिक्ट होते जा रहे हैं, दुनिया घुसती जा रही है हमारे अंदर। कश्ती उतनी देर तक नहीं डूबती जब तक पानी उसके अंदर नहीं आ जाता। एक ईमानदार उतनी देर तक खड़ा रहता है जब तक दुनिया उसके अंदर नहीं घुस जाती। जब दुनिया उसके अंदर घुस जाती है वो डूब जाता है, सिंक कर जाता है। हमने अपने आप को बचाना है कि दुनिया हमारे अंदर ना आ जाए। दुनिया अगर हमारे अंदर आ गई हम डूब जाएंगे, सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज हमने सारे चैनल्स खोल रखे, फिल्में हम देख रहे हैं, ड्रामे हम देख रहे हैं, और जो उसके अंदर हमें फैशन परस्ती नजर आ रही है उसको हम अडॉप्ट कर रहे हैं। मैंने कई बार ये चीजें बताई हैं कि उनकी तो नौकरानी भी ऐसी है हमारी बेगमात से आगे। नौकरानी जो चाय लेके आ रही है उसके नहीं कोई फैशन संभाले जा रहे, उसकी साड़ी इतनी कीमती कि आज यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर बेगमात इतनी महंगी नहीं पहन। किस चीज को हम लाइक कर रहे हैं, किस चीज को हम फॉलो कर रहे हैं। वो बहनें और बेटियां जो बेचारी एक कमरे के मकान में रहती हैं, वो उन ड्रामों को देख देख के अपने बंदों का बेड़ा कर रही हैं। कहती तू तो मेरी जिंदगी नहीं रोक लाता है, जदों दी तेरे घर आई है कि कमरे जो बाहर ही नहीं निकल सकी। बददुआएं दे रहे हैं, कोसने अपने आप को, क्योंकि वो ड्रामे देख। वो ड्रामों के अंदर काम करने वाले लोग भी रक्शे में घर जाते हैं बाद में, लेकिन आपको वो दिखा रहे हैं वी आर हैप्पी पीपल, हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत अच्छे हैं, हमारी जिंदगी में कोई दुख नहीं। एक बंदे ने एक दिन आर्टिकल के अंदर एक चीज लिखी, उसने कहा शादी पर ही हर क्यों फिल्म खत्म हो जाती है। जैसे ही शादी होती है साथ ही फिल्म भी क्लोज हो जाती है। उन्होंने कहा उसके बाद ही कहानी शुरू होती। जब शादी आपकी हो जाती है उसके बाद क्यों नहीं आगे चलाते स्टोरी। इश्क मशूकी और पता नहीं किन चीजों में नौजवानों को उलझा दिया आज मीडिया ने। इतना ज्यादा प्रेशर है, इतना ज्यादा प्रेशर है मीडिया का कि बच्चों की मत मारी गई, उन्हें समझ नहीं आ रही कि हम करें क्या, और वो उस सैलाब के अंदर बहते चले जा रहे हैं। लेकिन लिखा है जिस घर की बुनियाद चट्टान पर है, सैलाब आएंगे, मीडिया आएगा, मीडिया टकराएगा उसके साथ, मीडिया खुद ही खिलत बुलत जाएगा, क्योंकि उसकी बुनियाद चट्टान पर है। अगर आप खुदावंद में मजबूत हैं तो मीडिया आपको हिला नहीं सकता। अगर आप खुदावंद में खड़े हैं तो दुनिया आप पर गालिब नहीं आ सकती। आप अपने ईमान से दुनिया को मगलूब करेंगे। लेकिन अगर आप ईमान में कमजोर हैं, आपका ध्यान खुदावंद से हट गया है, दुनिया बड़े आराम से आपको फ्लैट कर देगी। आमीन। आप इन बातों को समझ लें। एंड्रॉयड मोबाइल, स्मार्ट मोबाइल, ये दुनियावी बहसों में आपको फंसा देगा। मैं जब वाइस को स्कूल लेने के लिए जाता हूँ, वहां पर लोग खड़े होते हैं, बहस कर रहे होते हैं एक दूसरे से, क्योंकि किसी ने कोई क्लिप देखा, किसी ने कोई क्लिप देखा, वो एक दूसरे से लड़ रहे हैं। वो अपनी इंफॉर्मेशन झाड़ रहा है, वो अपनी इंफॉर्मेशन झाड़ रहा है। हर बंदा यूट्यूब पे है, वो जो उसका दिल करता है वो अपलोड कर देता है। यूट्यूब पे तकरीबन मेरे अंदाजे के मुताबिक 70% इंफॉर्मेशन फेक है, उसके अंदर सच्चाई नहीं है। जो टोटके आपको बताए जा रहे हैं उनसे लोगों को फिंसियां निकल रही हैं बजाय फिंसियां जाने के। आज मैं आपको एक ऐसा टोटका बताऊं, अगर इन पत्तों को आपने इस्तेमाल कर लिया, आपका रंग भी साफ हो जाएगा, आपके दाने भी चले जाएंगे, और आप दूसरों को भी जरूर बताइएगा। वो कहती मैं तो हुणे अपनी भैन नूं, खुद उसने भी यूज नहीं किया, अपनी भैन नूं, अपनी भाभी नूं, अपनी मासी नूं, अपनी खाला नूं पहले शेयर कर दे। वो पहले बहन खुद तो चेक कर ले, वो बाद चो फिर जो उन्हें मलिया मूंह ते सवेरे जो उठी इंज छाइयां पै गई, कहती मेरी भैन ऐ ना लाना, ऐ देखो, फिर तस्वीर भेज दी, कहती ऐ मेरे नाल होया, चटाक पै गई। ये आपको उलझा देगा, ये आपको उलझा देगा, उलझे मत। और खुदाम यीशु मसीह ने फरमाया, मत्ती की इंजील उसके 12वें बाब की 36वें आते हैं, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो नकम्मी बात लोग कहेंगे, जो नकम्मी बात लोग कहेंगे, अदालत के दिन उसका हिसाब देंगे। टिकटॉक ये क्या है? ये नकम्मी बातें, इतनी घटिया, इतनी फहश, इतनी म्यार से, अखलाक से घिरी हुई हरकतें वहां पर बेटे और बेटियां कर रहे हैं, और वो इंस्पायर हो रहे हैं एक दूसरे से। अभी चंद दिन पहले, मेरे ख्याल से परसों, 3 टिकटॉक के किंग गाड़ी के अंदर उनका एक्सीडेंट हुआ है, वो बेचारे मर गए। उत्थे भी कोई टिकटॉक ही बना रहे होंगे, सड़क के उत्ते तेज गड्डी जा रही हो, टिकटॉक बना रहे, लपेटे गए तीनों। नौजवान नस्ल को होश करने की जरूरत है। बुजुर्गों का भी बुरा ही हाल है, ये नहीं कि खाली नौजवान ही इसमें मुलव्वस हैं, बुजुर्गों का भी बुरा हाल है। उलझे पड़े हैं, जिंदगी उलझाव का शिकार है, जिंदगी में सुकून नहीं। आप अगर मेरी इन बातों का यकीन करना चाहते हैं, 1-2 दिन अपना मोबाइल बंद कर दें, बटन वाला फड़ाना है, देखो है मेरा मोबाइल बटन वाला, हेलो जी, ओके, आ गया जी दूध, कोई गल नहीं, घबराओ नहीं, डबल रोटी भी लैंदा आवांगा, बस बात हो गई।
एंड्रॉयड मोबाइल, फोन तो इतने आते नहीं जितने हम उर्लम परलम चीजों में फंसे हुए। फोन तो कभी आता ही नहीं हमें। हमें तो पता नहीं क्या क्या चीजें लोग भेज रहे हैं, हम आगे भेज रहे हैं, वो उसको भेज रहा है, वो उसको भेज रहा है, वो उसको भेज रहा है, उलझाया हुआ एक दूसरे को। जो निकम्मी बात लोग कहेंगे अदालत में उसका हिसाब देंगे। कलाम हमारी तरजीहात और सोचों के टोटल ऑपोजिट बयान दे रहा है। जितनी भी बातें हमने इसमें पढ़ी हैं खुदा के कलाम में, वो हमारी सोचों के साथ टैली नहीं करती, हमारी सोचों के साथ मैच नहीं करती। और टिकटॉक असल में बनाया इसलिए गया है कि नौजवानों को उलझाया जाए, उनको उस सिमत में लेकर जाया जाए जिस सिमत में उन्हें नहीं होना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, अपने मोबाइल का यूज कैसे कर रहे हैं? हमारे मोबाइल का यूज अच्छा नहीं है। और चौथी बात बड़ी अजीब है, ये आपको मुकाबलाबाजी के लिए तैयार करेगा। किसके लिए तैयार करेगा जी? मुकाबलाबाजी। मोटरसाइकिल कोई ले ले, मोटरसाइकिल, गाड़ी, कोई भी चीज, घर, फौरन तस्वीरें अपलोड कर देते। कोई मेहमान आपके घर में आए, उसकी तस्वीरें लगा देंगे, वो खाना खा रहा बेचारा, तो सबको पता चल जाता है कि भाई यार उत्थे गया सी, उत्थे जाके कुकड़ खा के आए। पूरी फैमिली को पता, कहता भाई जान तुसीं उत्थे गए सो, मैं तुहानूं देखिया तुसीं रोटी खा रहे सो। कहता मेरे वक्त हरे हुए सन, मैं उत्थे चला गया। कोई प्राइवेसी नहीं। सालगिरह कर रहे हैं घर में, उसकी तस्वीरें अपलोड कर, सोए हुए हैं उसकी तस्वीरें अपलोड कर, उठ रहे हैं उसकी तस्वीरें अपलोड कर, स्कूल जा रहे हैं तस्वीरें अपलोड कर, स्कूल से आ रहे हैं तस्वीरें अपलोड कर। मुकाबलाबाजी। भाई नईम कुंदन यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनकी बड़ी मजे की बात मुझे लगी। इन्होंने मेरी डीपी पे, मैंने व्हाट्सएप बड़ी लेट शुरू किया, वो भी इसलिए कि मैं खुदा का कलाम लोगों को भेजूं आगे। इन्होंने मेरी तस्वीर देखी, कहता भाई साहब से बुरा ना बनाना मेरी गल का। मैं कहा नहीं जी मैं नहीं बुरा बनाता, तुसी करो गल। कहता जी तुहाडी तस्वीर इंज है जिवें बंदे नूं यरकान होया है। पीली तस्वीर थी, पीली, पीला ही बैकग्राउंड थी, पीली अगे टाई लाई हुई, वो बिल्कुल ही रंग भी पीला हो गया। इन्होंने कहा भाई साहब जरा अपनी तस्वीर मैनू तो भेजो, या मैं ऐसी तस्वीर तो थोड़ी ट्रीटमेंट करदा। मैं कभी कर दो। इन्होंने पता नहीं क्या, भाई बड़े अच्छे फोटोग्राफर है, इन्होंने पता नहीं क्या किया, मैंने उसको वाइट कर दिया, थोड़ी ब्राइटनेस ले। कहते हुण ए लाओ, अच्छी लग रही। मैं वो लगी हुई है, जब से मैंने बनाई थी उस वक्त से वो ही लगी हुई है। मेरी शक्ल तो नहीं बदली, तस्वीर बदलने से मुझे क्या मिल जाना? कोई बाग में खड़ा हो, फुल्ला फड़ के खड़ा, और यही ढूंढते रहते केड़ी लोकेशन तस्वीर सही आएगी। कहता उत्थे आ, उत्थे सूरज की लाइट तेरे मुंह पे पैनी, बड़ी सोहनी तस्वीर है। यही चक्कर है बस, और अब क्या जिंदगी रह गई? मोबाइल है, हम है, मोबाइल की जरूरियात को हम पूरा कर रहे हैं। मोबाइल हमारी जरूरियात नहीं पूरा, हम मोबाइल की जरूरियात पूरा कर रहे हैं, नित नई तस्वीरें उस पर डाल रहे हैं। मुकाबलाबाजी है। और ये फोटोशॉप तस्वीरें आप देखें, वो मियाँ बीवी जो एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते तस्वीरों में, हैप्पी कपल, केड़ा कपल है, वो एक दूसरे को देखना, वो कहता सालन लिया, कहता आप ही पाला। दिखावे की दुनिया, दिखावा 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 दिखावा, मुकाबलाबाजी मुकाबलाबाजी। पास्टर्स भी, उनकी हरकत भी इतनी छिछोरी हैं। सही बात है, ये छिछोरी हरकत कर रहे हैं। एक खादम कलाम सुना रहा है, वो पीछे तस्वीरें दिखा रहे हैं, मरी के आसा देखो सर जी इत्थे दे जिहड़े नान जे ना कमाल ही नान, कहंदा इंज मूंह च पाओ इंज घोल के थल्ले चला जांदा। पादरी अगे कलाम सुना रहा है, कलीसिया सामने खड़ी देख रही है कि असी इहदा कलाम सुनिए या अपने पादरी दी छिछोरियां हरकतां देखिए। फलानी बहन ने हमें खड़ी दी, चलो जी तस्वीर ला दो। फलानी बहन कारपेट लेके तस्वीर ला दो। फलानी बहन ने फॉर्म दिता, तस्वीर ला दो। फलानी बहन ने किया, तस्वीर ला दो। तस्वीर ही तस्वीर। और कई फेसबुक के ऊपर मंगतों के काम कर रहे हैं, वो मंगते बने में। अगर किसी भाई को खुदा का रूह भारता है तो हमें जनरेटर लेके दे सकता है। जो जरूरतें होती है वो तस्वीरों पे लगाए जा रहे हैं। We have church, we have everything, but we have no generator. So please provide us. वो खुदा से नहीं कह रहे, वो लोगों को उभार रहे हैं कि ले आओ चंदा, ले आओ चंदा, ले आओ चंदा। ओ भाई कलाम तो पहले सुना लो, लोगों की जिंदगियां तो बदल जाए, लोगों के ज़हन के अंदर को कलाम तो चला जाए, को कलाम की सच्चाइयां तो उनको पता चल जाए। यीशु जल्द आ रहा है ये तो बता लो उनको पहले। अपने आप को तैयार करो भाइयों, वक्त बहुत कम है। ये कलाम कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा, मैं को अपने आप से खबर नहीं लाया, ये कलाम बता रहा है कि यीशु की आमद नजदीक है, यीशु जल्द आने वाला है। आज हम मुकाबलेबाजी में पड़े हुए, लोग एक दूसरे को देख के जड़ रहे हैं। फोटोशॉप की तस्वीरें, वो बंदा जिसकी शक्ल के ऊपर दाग धब्बे पड़े हुए, वो इंज भाईजान ऐप एक डाउनलोड करता है, तस्वीर छोड़ता है, कड़िंग करके और लाता है, इंज भाई चिट्टा हो जाता तस्वीर। कहता यार है तो बदल ही गया बिल्कुल। नाइस डीप, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। मुकाबलाबाजी। कहता हूँ मैं की करा, मैं भी तस्वीर लाना हूँ, वो अपनी तस्वीर ला दो। वो मुनाल की लगाता हूँ, पीसी की लगा दो। वो किसी दोस्त की गाड़ी लेके उसके अंदर बैठ के कह देता खुदा ने मुझे दी। मैंने आपको बताया था ना, एक पास्टर जसन साहब से एक बंदा दुआ कराने के लिए आ गया, मोबाइल उसके हाथ में, कहता भाई साहब दुआ कर दो, खुदा ने दिता है।
कहता जी मैं बड़ी दुआ कर रहा भाई साहब, कहते चलो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, आओ दुआ करें। तो भाई कितने का लिया? कहते दिया नहीं, मुझे सड़क से मिला। तो जसमिन भाई ने कहा सड़क से मिला है? भाई साहब कहते सड़क से मिला। तो भाई आपने उसका कहता मैं सिम पहले काट के छोड़ती थी। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। दिता खुदा ने, ये खुदा ने दिया। खुदा ऐसे देता है कि भाई सिम काट के छोड़ दे, अगला फोन करता रहे कि यार मेरा मोबाइल कितने। भाई शायद को एक मोबाइल मिला था अमेरिकन कॉन्सर्ट के बाहर, तो वो मोबाइल मिला तो भाई ने उठा के उसको जेब में डाल लिया। भाई को पता था कि जिसका भी गिरा वो कॉल तो करेगा। भाई ने उसको ना ऑफ किया और ना ही उसकी सिम निकाली, उसको ऑन रहने दिया। उस बंदे ने कॉल की, उसने कहा सर मैं, ये मेरा मोबाइल है जो आपके पास है। उन्होंने कहा हाँ जी आपका ही मोबाइल है, आप आए, आप अपनी शिनाख्त दें, अपना मोबाइल लेंगे। और वो लड़का अपने बाप को लेके आया साथ, और बाप ने आया, उसने कहा बेटा मैं आपका बहुत मशकूर हूँ, खुदा आपको बहुत बरकत दे। ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम हैं। यकीनन ऐसे लोग वही हैं जो यीशु के खून से धुले हुए, और जो खाली प्रिटेंड कर रहे हैं कि हालेलुया हालेलुया, वो सिम काट के सुट देंगे ते पादी को दुआ कराते हैं हालेलुया भाई साहब दुआ कर दो, खुदा ने बड़ी सुनी है, नेड़े होके सुनी। मत्ती की इंजील उसका 6वां बाब उसकी पहली आयत, खबरदार अपने रास्तबाजी के काम आदमियों के सामने दिखाने के लिए ना करो। अपनी रास्तबाजी के काम आदमियों के सामने दिखाने के लिए ना करो, नहीं तो तुम्हारे बाप के पास जो आसमान पर है तुम्हारे लिए कुछ अजर नहीं। अजर कोई नहीं। मैंने ऐसे ऐसे पासवान देखे जो गरीबों को आटा दे रहे हैं, वो तस्वीर लाई फेसबुक। एक बुजुर्ग आदमी को उसको 500 रुपया दे रहा पादरी, एक कोना 500 का फड़िया कोनू फड़ाया। मुझे नफरत हो गई फेसबुक से, बिलीव कर। फेसबुक मुंह की किताब, हर बंदा मुंह ही अपना दिखा रहा है। शोबाजियां शोबाजियां शोबाजियां, हम उधर गए, हम उधर गए, हमने फलानी जगह पे बारबेक्यू किया, हमने ये किया, असि फलाने दरिया ते गए, असि उत्थे बोटिंग की, असि उत्थे मच्छियां फड़ियां, असि इंज कीता, असि उंज कीता। कुछ पादरी मैंने देखा है कि वो दुआ करने की भी डीपी लगा देते हैं, आई एम प्रेइंग। ओ भाई खुदा कह रहा है कि तू अपनी कोठरी में जा, तू पूरी दुनिया को दिखा रहा है कि मैं दुआ करने। पादरियों की भी मत मारी गई है, तो कलीसिया का क्या हाल होना। मोबाइल 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 मोबाइल, शोखियां शेखियां भरी हुई आज इंसान। वो बंदा जिसको कोई नहीं पूछता वो अपनी तस्वीरें लगा रहा, धड़ाधड़ तस्वीरें लगा, हीरो बना हुआ। अपने काम इंसानों को दिखाने के लिए ना करते। 5वीं बात, हम दूसरों की पसंद नापसंद पर जिंदगी गुजारना शुरू कर देते। ये बहुत खतरनाक है। मैंने देखा है कुछ बच्चों को, वो अपनी तस्वीर अपलोड करते हैं, उसके बाद वो ख्याल करते हैं यार कोई देख नहीं रहा, कोई कमेंट नहीं कर रहा। कमेंट कौन करते हैं? अपने घर के लोग नहीं करते। घर के लोग क्यों नहीं करते वो भी बताता हूँ। बाहर के लोग क्यों करते हैं? क्योंकि वो फैसिनेट हो जाते हैं उस तस्वीर से जो फोटोशॉप्ड होती है, जिसके ऊपर इफेक्ट्स डाले गए होते हैं। उस बंदे की असल शक्ल तो कुछ और है, लेकिन जब उसने नेट पे वो तस्वीर डाली तो लोग कहने लगे यार बड़ा सोना, क्या बात है यार। कई ऐसे लोग हैं उन्होंने हीरोज की बॉडी लेके अपना सिर काट के ला ले, मुंह अपना है, बॉडी किसी हीरो की। शोखियां मार रहे हैं। एक चारपाई इधर है, एक चारपाई इधर है, बीच में एक कुर्सी है, उस कुर्सी पे एक बंदा बैठा हुआ, 2 बंदे मंजी के अंदर बैठे हैं, 2 बंदे इत्थे बैठे हैं। पाल साहब कलाम सुना रहे हैं, उत्ते लिख रहे हैं थाउजेंड्स ऑफ पीपल रिसीव जीसस। वो थाउजेंड्स ऑफ पीपल दिखा दे सही, वो है कितने ने? 2 बंदे ऐसे मंजे ते बैठे हैं, 2 अंदर बैठे हैं। थाउजेंड्स ऑफ पीपल रिसीव जीसस। और कई लोगों ने अंदर फजल की, उनकी तस्वीरें डाउनलोड करके उसे अपनी तस्वीर ला लो, आए और शिफा पाए, मुर्दे जिंदा हो रहे हैं, थोड़ी पाक साफ किए जा रहे हैं। हालेलुया हालेलुया, आजो आजो सारे। कुछ भी नहीं हो रहा। मौजे तो तब होंगे जब कलीसिया दुआ करेगी, जब कलीसिया स्टेटस अपलोड करती रहेगी, जब कलीसिया डीपीए लगाती रहेगी, जब कलीसिया लाइक डिसलाइक करती रहेगी, तो मौजे कख होने ने। कोई मौजा नहीं होना। मौजा दुआ से होता है। जब खुदा की हजूरी में लोग जाते हैं, जब खुदा का मसा आता है, जब खुदा की हजूरी आती है, जब खुदा का जलाल उतरता है, जब खुदा अपना हाथ बढ़ाता है, तब मौजे होते हैं। मोबाइल यूज करने से मौजे नहीं होते। सुन ले मेरी बात, बाइबल मुकद्दस है जो जिंदगियों को बदलती है। बाइबल मुकद्दस है जो हालात को चेंज कर देती है। बाइबल मुकद्दस है जो ख्यालात को, सोचों को यकसर तब्दील कर देती है। अगर आप इसको पकड़ लेंगे आप कामयाब होंगे। अपने मोबाइल में भी आप बाइबल मुकद्दस रख सकते हैं, गीत रख सकते हैं, खुदा का कलाम सुन सकते हैं। बहुत से ऐसे भाई हैं जिन्होंने हमें गवाहियां दी। उन्होंने कहा सर हमारी मोबाइल के अंदर पूरा जो मेमोरी कार्ड था वो फिल्मी गानों से और मूवी से भरा हुआ था, लेकिन हमने सब कुछ डिलीट कर दिया। हमने कलाम भर लिया आपके, और पादी साहब के कलाम भर लिए, जसन साहब के, आपके कलाम भर लिए, आपकी टीम के कलाम भर लिए। हम सुन रहे हैं, हमारी जिंदगियां बदल गई। हमने लोगों की पसंद नापसंद पे अपनी जिंदगी, अगर कोई आपके कपड़े पसंद कर दे हम वही स्टाइल अपना लेते हैं कि लोग पसंद कर रहे हैं। बाहर के लोगों को क्या पता, वो आपको जानते भी नहीं, वो बस एक बटन दबाते हैं लाइक। मैं फेसबुक पे कलाम अपलोड करता हूं, अभी मैंने कलाम अपलोड किया है, 1 ही सेकंड के अंदर बंदे ने लाइक भी कर दो। वो मैं अगर 3 मिनट का कलाम है, तू स्किटा जी लाइक कर देता, कोई नहीं सुनता। मतलब लॉजिक वाली बात है। 30 मिनट का पैगाम है, मैंने अभी अपलोड किया, दूसरे सेकंड में एक बंदा लाइक कर देता।
थल्ले अंगूठा बना दूँ। जबरदस्त, वाह जी वाह भाई साहब, यू आर डूइंग गुड जॉब। मैं कहा तू सुनिया की है। घर वाले इसलिए आपकी तस्वीरों पे कमेंट नहीं करते क्योंकि घर वालों को आपका करैक्टर पता है। दे नो हु यू आर, उन्हें पता है कि आप हैं कौन। वो तो आपको मुंह से वर्बली कहेंगे शाबाश बेटा शाबाश बेटी, लेकिन जब आप में शाबाश वाली बात ही कोई नहीं, तो उनकी जरूरत है तस्वीरें लाइक करें। गैर लोग जिनको आप नहीं जानते वो आपकी तस्वीरें लाइक कर रहे हैं। आप अपनी फैमिली को छोड़ के अपना रुझान उनकी तरफ लेके जा रहे हैं। ये कर रहा है मोबाइल, आपको अपनी फैमिली से जुदा कर रहा है, आपको गैर लोगों के साथ कनेक्ट कर रहा है। फैमिली एक दूसरे से दूर हो रही है। गैर लोग जिनको हम जानते ही नहीं, जिनका अता पता ही कोई नहीं, हो सकता है जिसको आप लड़की समझ रहे हैं वो लड़का हो, जिनको आप नसीम समझ रहे हैं भावे अशरफ होए। तस्वीर उसने लगा दी लड़की की, आई एम नसीम। माफ कीजिएगा अगर कोई नसीम है, लेकिन नाम तो है नसीम, कोई ना कोई तो मैं नाम लेना कि जी मेरा ये नाम है। अच्छा अच्छा, आपकी तस्वीरें बहुत अच्छी हैं, गुड गुड। आप कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं? अब है वो बंदा, लेकिन वो आपसे बातें कर रहा है, वो आपको उलझा रहा है, वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। हम अपनी फैमिली के साथ इतना टाइम स्पेंड नहीं कर रहे जितने गैर लोगों के साथ अपने घर के अंदर ही बैठ के कर रहे हैं। गैर लोगों की पसंद नापसंद हमें ज्यादा पसंद है। हमारी फैमिली हमारे बारे में क्या सोचती है हमें केयर ही कोई नहीं। समझ रहे हैं आप ये बात क्या है? फैमिली के अंदर आज कोई किसी से गुफ्तगू नहीं कर रहा, फैमिली के अंदर गुफ्तगू का कोई माहौल नहीं। गलतियों का खत उसका पहला बाब उसकी 10वीं आयत में लिखा है। अब मैं आदमियों को दोस्त बनाता हूं या खुदा को? सवाल है, पौलुस पूछ रहा है, क्या आदमियों को खुश करना चाहता हूं? अगर अब तक आदमियों को खुश करता रहता हो तो मसीह का बंदा ना होता। आप आदमियों को खुश कर रहे हैं या खुदा को खुश कर रहे हैं? खुदा कैसे खुश होगा तस्वीरें लगाने से? हर वह मोबाइल चमड़े रहना खुदा खुश हो जाएगा? खुदा तब खुश होगा जब हम उसकी हजूरी में आएंगे। अगर हम उसकी हजूरी में नहीं आ रहे और तस्वीरें सेंड किए जा रहे हैं लोगों को, फलाने इवेंट पे गए, फलाने इवेंट पे गए, ये हुआ वो हुआ, वीडियो बना के सेंड कर रहे हैं और लोग लाइक कर रहे हैं, बड़े खुश हैं। हमें लगता है कि शायद लोग हमें बहुत ही पसंद करते हैं, वो पसंद नहीं करते, वो धोखा दे रहे हैं। आप वो तो आपको जानते ही नहीं, पसंद उन्होंने क्या करना। पसंद नापसंद आपकी फैमिली करेगी आप, क्योंकि वो आपके साथ रहते हैं, वो आपकी जात की हर एक चीज को, नेगेटिव को और पॉजिटिव को जानते हैं, वो उस बेस पे आपकी तारीफ करेंगे। लेकिन एक ऐसा आदमी जिसको आपने कभी देखा ही नहीं, वो नेट पे आपके साथ लिंक अप हो गया, आपने तस्वीर भेजी, उसने लाइक कर दी, आहिस्ता 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 कहानी बढ़ती जाती, फिर वो पता नहीं किधर चली जाएंगे। ऐसे ही है। और आखिरी बात, हम उस चीज से हट जाते हैं जो चीज असल है, हम नकल के पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं। ये मोबाइल ये कर रहा है, ये हमें शराब दिखा रहा है। शराब समझते हैं क्या है? कभी आप सड़क पे जा रहे हो तो आपको ऐसा लगता है कि पानी है, गर्मियों के अंदर पानी नहीं होता, वो शराब है। शराब क्या है? जब गर्मी की तपिश से वहां पे हवा गर्म हो जाती है तो ऐसे लगता है आपको कि जैसे आगे पानी है, लेकिन जब आप आगे जाते हैं पानी होता नहीं। इसको शराब कहते हैं। ये रेगिस्तानों में बहुत ज्यादा लोगों को डिस्टर्ब करता है, क्योंकि वहां पे तपिश ज्यादा होती है, लोगों को अजीबोगरीब मनाजिर वहां पे नजर आते हैं, वो भागते हैं, लेकिन आगे कुछ भी नहीं। मोबाइल भी एक शराब है। ये हमें वो दुनिया दिखा रहा है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। ऐसी ऐसी लड़कियां, ऐसे ऐसे लड़के, अगर आप उनको हकीकत में देखें आप उनको पसंद ना करें। क्यों जी? नईम साहब मैं सही कह रहे हैं। तुसी ऐसे बहुत सारे मॉडल्स देखे ने जिन्होंने तुसी टिप टॉप किया और उनको खड़ा किया और वो दुनिया गरी, वाह यार क्या बात, इतने खूबसूरत लोग, लेकिन हकीकत में आप उनको पहचाने के भी नहीं। कोल ही खलोता है, कहता पहचान नहीं रहा, उसकी हकीकत कुछ और है, क्योंकि जो डेंटिंग पेंटिंग से उसको बनाया गया था उसमें तो वो कुछ और ही लग रहा था, अप्सरा लग रही थी, लेकिन जब उसके ऊपर से हटा वो सब कुछ, फिर वो कुछ और ही काम था। हम असल से बहुत दूर चले जाते हैं। इन सब बातों के सुनने पर जो कही जाए कान ना लगा, वाइस की किताब उसका 7वां बाब उसकी 21वीं आयत। और आखिरी बात, लूका की इंजील उसके 10वें बाब में एक वाकया मुंदरज है, मरियम और मार्था। मार्था फॉलो कर रही थी किसी और स्कूल ऑफ थॉट, मरियम किसी और स्कूल ऑफ थॉट की। मरियम बैठ गई थी खुदावंद के कदमों में, मार्था बैठ नहीं गई। आज हमने देखा बहुत से लोग बड़ा काम कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो व्हाट्सएप पे पादरी बन रहे हैं। ऐसे भी कुछ पादरी ने जिन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, तो मैं कहा भाई साहब तुसीं कित्थे हुंदे हो? कहना जी अपना ग्रुप बनाया, शुक्र है खुदा दा सी पादरी ना उसको किसी कलीसिया ने परखा, ना उसने कहीं से कोई नॉलेज लिया, ना उसने कहीं से कोई सेमिनरी की, ना उसने कोई खिदमत की। सिर्फ उसने घर पे बैठ के सोफे पे लेट के एक ग्रुप बनाया, उसमें 4-5 बंदे ऐड किए, उनके ऊपर दुआएं की और पादरी कहलाना शुरू हो गए। ये हकीकत नहीं है, ये शराब है। आज हम शराब के पीछे दौड़ रहे हैं। आज अपने आप को भी देखिए, क्या मैं मार्था की तरह हूँ जो दुनियादारी के धंधों के अंदर फंसी हुई है? यीशु को वो जानती थी, ऐसा नहीं था कि वो यीशु को नहीं जानती। यीशु को उसने फेस टू फेस देखा था, यीशु की तालीमात से भी वाकिफ थी, लेकिन वो किसी और स्कूल ऑफ थॉट में मूव कर रही थी। लेकिन मरियम यीशु मसीह के कदमों में बैठ गई। मैं आपको भारना चाहता हूँ, आपके जो मोबाइल फोन्स हैं इसमें खुदा का कलाम भरे, इसमें गीत भरे, और गैर जरूरी चीजें भेजने से इज्तनाब करें। कोई इतना वेला नहीं है कि वो आपकी तस्वीरें देखता रहे। कई बार लोग ये भी नहीं देखते कि ये क्या चीज़ है, वो लाइक कर देते। ये दुनियादार है, ये दुनिया
दुनियादार है, इसमें दुनियादार लोग बसते हैं जो धोखा देते हैं, जो फरेबी हैं, जो अपने फायदे की बात सोचते हैं। लेकिन एक ईमानदार शख्स हमेशा दूसरों की बाबत सोचता है, क्योंकि वो खुदावंद में है, उसके अंदर खुदा की मोहब्बत है। लास्ट संडे हमने यही मैसेज सुना था। मैं आपको इस बात के लिए उभारना चाहता हूँ, अपने इस मोबाइल फ़ोन को चेक कीजिए, हर एक गैर जरूरी डाटा इसमें से निकालिए। इसको शोबाजी के लिए इस्तेमाल ना करें, इसको अपने जहन को उलझाने के लिए इस्तेमाल ना होने दें। कंट्रोल करें अपनी ख्वाहिशात, दुनियावी बहसों में ना फंसे, लोगों की लाइक और डिसलाइक के ऊपर लाइफ ना गुजारें। खुदा के कलाम में अपने आप को रख के देखें कि मैं खुदा का पसंदीदा हूं या नहीं। लोग आपको अगर नापसंद कर रहे हैं कोई मैटर नहीं, वो चंद हफ्तों के बाद अपनी राय बदल लेंगे। लेकिन अगर खुदा में हम नहीं हैं, यीशु मसीह ने कहा ये फियल हकीकत इसराइली, इसमें मकर नहीं। आमीन। अपनी आंखों को बंद कीजिए और सोचिए कि ये स्मार्टफोन जो आज हम यूज कर रहे हैं, ये हमारी जिंदगी को कहां लेकर जा रहा है? क्या हम इससे फायदा उठा रहे हैं? वर्ल्ड साल्वेशन चर्च मिनिस्ट्रीज इस मोबाइल के थ्रू, इस इंटरनेट के थ्रू तकरीबन हर माह 80 से 90 हजार लोगों को टच करती है। इसी मोबाइल के थ्रू 80 से 90 हजार लोगों को हम रीच करते हैं, उन तक पहुंचते हैं, उनको कलाम सुनाते हैं। उनमें से बहुत से लोगों के पास हम पर्सनली जाते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, उनकी गवाहियां सुनते हैं, क्योंकि हमने इस मोबाइल को, हमने इस डिवाइस को उस तरह से यूज किया है जिस तरह से खुदा चाहता है कि हम इसे यूज करें। ये एक इजाद है ताकि इससे हम खुदा का जलाल जाहिर करें। ये एक इजाद है जिससे हम खुदा की कुदरत को लोगों तक लेकर जाएं। इससे अपनी जात की नुमाइश मत कीजिए, इससे खुदा का जलाल जाहिर कीजिए। लोगों को बताएं कि मेरी जिंदगी के अंदर खुदा ने क्या कुछ किया है और खुदा उनकी जिंदगी में क्या कुछ कर सकता है। और वो पैगाम आगे मत भेजिए जो आपने खुद नहीं सुना। पहले इसको खुद सुने और देखें कि क्या इसकी तालीम ठीक है भी या नहीं। अगर आपको लगता है कि ये तालीम ठीक नहीं है, उसको आगे फॉरवर्ड ना करें, क्योंकि आपने उसको अपने मोबाइल से सेंड किया, आप जिम्मेदार हैं। देखिए, जांचिए, परखिए आप कहां पर खड़े हैं। आज खुदावंद आपको इस चीज के लिए उभार रहा है कि आप अपनी जिंदगी पर गौर करें। हमने बहुत वक्त जाया कर लिया, हमने बहुत वक्त बिता लिया। अब वक्त है कि हम संजीदा हों, ताकि खुदा की कुदरत कलीसियाओं के अंदर आए, ताकि खुदा की कुदरत घरानों के अंदर आए, ताकि खुदा की कुदरत शख्सी जिंदगियों के अंदर उतर आए। आइए खुदा की तरफ रागब हों, आइए अपने घुटने खुदावंद के हुजूर झुकाएं, आइए बाइबल मुकद्दस को खोलें, उसकी सच्चाइयों से अपने जहन को मोतर कीजिए, अपने जहन को शराब कीजिए खुदा के कलाम से, ताकि आप जिंदगी पाएं, ताकि आप जिंदगी पाएं, ताकि आप जिंदगी पाएं। इंटरनेट को अगर आप यूज करते हैं तो जरा देख लीजिए कि आप उस पर कौन कौन सी चीजें सर्च कर रहे हैं। क्या उनसे खुदा के नाम को जलाल मिलता है? क्या उससे मेरी रूहानी तरक्की होती है? क्या उससे दूसरों की रूहानी तरक्की होती है? क्या मैं उसको अपने नुकसान के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं या अपने फायदे के लिए? फैसला आपका है, चुनाव आपका है। खुदा ने आपको आजाद मर्जी पर छोड़ा है और मेरी दुआ आपके लिए यह है कि आप मरियम की तरह बेस्ट हिस्सा चुनें, यीशु मसीह के जिंदा, कादिर, अब्दी और जलाली नाम के वसीला से। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।